Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. वालेकुम वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। How are you guys this afternoon? सब फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। Good. That's great. Okay, we are still waiting for the announcement from government and from LUMS whether we are having classes, physical classes in next week or not. So before this announcement is public, we have to continue with our online sessions. And as I have discussed many times, that when you are online, you have to be as interactive as possible. Sometimes I feel that you guys are not responsive, and that cause a drag in the fluency of lecture. So I just want your response immediately, whether you know it or not know it. It does not matter. But what I mean, what I want is that you should respond when I ask question, and so that I feel that we are doing something interactively. Okay, so in the previous classes, we initiated this topic of interpretation of mass spectrum, and that have two different steps. The first step is to understand the mechanisms at the molecular level, and then you start working on the actual spectra. So we are still at the stage one, where we are examining different molecules, different functional group, and finding, number one, what is the site of ionization, and number two, how the mechanisms of alpha cleavage, beta or inductive cleavage, and rearrangement are taking place during fragmentation pattern. Okay, so after we learn this skill, the first step, we will look at MS spectrum, and we will identify, number one, the molecular ion peak, and then we will use the rule of 13 frequently to find the molecular formula and the composition. And then we will apply all these rules which we are learning now at that time, and that will help us to provide important clues. So it's very intuitive procedure. Okay, so any question in the previous lectures? Okay, no question, then we will continue with the class of compounds. So today we will start with the alcohol. And previously we saw the fragmentation of linear alcohols, and we found that two mechanisms were very prominent for the linear alcohols. First one is the dehydration, the removal of water from the molecular ion peak, and second, the alpha cleavage. So in cyclic alcohol, we have more or less similar mechanism, but a couple of variations are possible, which you have to see very clearly. Because cyclic cyclic structure is a stable structure. So you have to break at least two bond before the fragmentation can take place. So we will have frequent alpha cleavages in these type of molecule. The first one is the alpha cleavage to give M-1 peak. M-1 peak कब होती है? When only hydrogen
is cleaved from the molecule, and this hydrogen from the alpha cleavage position will be the one which is attached to the alpha atom. So your site of ionization is oxygen. This carbon will become alpha and hydrogen will become beta. So under this scenario, when you apply the alpha cleavage, then we will see the elimination of hydrogen from this molecule, and fragment which will be observed in mass spec will have oxygen with the positive charge, and now it is doubly bonded because of this free radical movement, and this hydrogen is gone, it is left, and hydrogen with oxygen is still attached. So that will give us our M over Z, and that will be 1 unit less than the molecular mass of cyclohexanol. Okay, so that is very simple alpha cleavage to get this M-1 peak. Okay, अब beta hydrogen can beta position can be in the ring as well, because this is alpha junction. We have an atom which is at beta position and another atom at this beta position. So in principle, the bond cleavage can take place inside the ring as well. So अगर रिंग के अंदर क्लीवेज होती है तो फिर अल्फा क्लीवेज किस तरीके की फ्रेगमेंटेशन देगा वो हम देखना चाह रहे हैं. So we will go back to our molecular ion with the positive charge and radical on its side, but now we are ignoring hydrogen here. We are just taking this carbon at the beta position. This is alpha, this is beta. So free radical move towards alpha, and then alpha beta bond will cleave and free radical will sit on the beta position. And now we will have a different fragment. So double bond at this place, positive charge on oxygen, hydrogen is still attached here, and now free radical has moved here. Okay. At this point, no mass has eliminated from the molecular ion. So we will have still same mass. So that fragment will still contribute in the same peak where this fragment is contributing, because both will have the same molecular same mass. So अब यहाँ पे एक different mechanism take place करता है. That is called the stabilization of oxonium ion. तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन. जिस तरह कार्बन के ऊपर होता है तो हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको ऑक्सोनियम आयन कहते हैं. तो इसकी स्टेबलाइजेशन होती है, द फ्री रेडिकल बिकम स्टेबलाइज्ड व्हेन इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू दिस पोजीशन. सो अब ये फ्री रेडिकल यहाँ तक पे कैसे आएगा, वो इस तरीके से ही आ सकता है अगर ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ, यहाँ ये दो हाइड्रोजन है, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके तो हाइड्रोजन को रीअरेंज करेगा इस पोजीशन पे और फ्री रेडिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा. सो हाइड्रोजन विल कम एट दिस प्लेस जहाँ पे फ्री रेडिकल है, क्योंकि फ्री रेडिकल ने हाइड्रोजन पे अटैक किया तो फ्री रेडिकल इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया. So we will draw the oxonium ion back, and now free radical is at this point and the rest of molecule is there. So this is a kind of stable position, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है which is highly unstable. यहाँ पे अलीलिक टाइप है, यानी कार्बन
ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के नेबरहुड में फ्री रेडिकल कैन बी डीलोकलाइज्ड ऑन दिस पार्ट, सो इट इज रिलेटिवली स्टेबल। अब यहाँ पे आप एक और अल्फा क्लेवेज लगाएंगे, सो वन अल्फा क्लेवेज, rearrangement, and then alpha cleavage. So that is a sequence of event. So इस अल्फा क्लीवेज में अब ये आपकी साइट ऑफ आयन है, फ्री रेडिकल है, दिस इज योर न्यू अल्फा एटम, दिस इज योर न्यू बीटा एटम। सो अल्फा बीटा के दरमियान जो बॉन्ड है वो यहाँ मूव करेगा, एंड देन फ्री रेडिकल विल सिट एट दिस प्लेस। ओके, सो अब आपके पास एक नया फ्रैगमेंट इसमें से निकलेगा with oxygen with positive charge, hydrogen still on the same place, and then we will have a new double bond, क्योंकि यहाँ दो एरो हेड मिल रही हैं, so that will complete another bond, and जहाँ पे टेल मीट कर रही हैं यहाँ से अल्फा बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, and one fragment will be lost with a mass of 29 यूनिट। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो यहाँ दो कार्बन हैं और 5 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हैं, सो दैट मेक टोटल 29 यूनिट मास, और ये आपका M/Z जो ऑब्जर्व होगा। सो ये है आपका मैकेनिज्म नंबर 2। दिस विल टेक प्लेस ओनली व्हेन वी आर डीलिंग विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, सो अल्फा क्लीवेज, this is alpha cleavage followed by stabilization of free radical, then another alpha cleavage, and then fragmentation। तो इस मैस को आपने बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व करना है, ये कहाँ पे बनेगा। ऑलराइट, एंड देन वी हैव द डिहाइड्रेशन, ये जो रिमूवल ऑफ वाटर है, एंड ऑफ कोर्स दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम द मॉलिक्यूलर आयन पीक। सो इसमें हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम 3 और 4 कार्बन अवे, यहाँ से अगर आप इसको देखना हो तो आप चेयर कन्फर्मेशन बनाएं, तो वो आपको क्लियरली इंडिकेट करेगा विच हाइड्रोजन इज मोर कन्वीनियंट। सो मैं यहाँ पे चेयर कन्फर्मेशन बनाता हूँ साइक्लोहेक्सानोल की, तो यहाँ OH आपका with positive and free radical together। अब यहाँ देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा हुआ है which is 1 2 3 कार्बन अवे। ओके, सो यहाँ से ये जो दो हाइड्रोजन है, सो दो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, सो वन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड free radical, and that will be rearrangement, and free radical will move at this place, this carbon, और इस कार्बन के साथ फिर जब ये फ्री रेडिकल बाकी जो OH के साथ का बॉन्ड है, व्हेन दैट इंटरेक्ट, तो उससे H2O इसमें एलिमिनेट हो जाता है। सो ये मैकेनिज्म हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा था। ओके, सो हमारे पास जो स्पीशी बनेगी दैट विल बी समथिंग लाइक, यहाँ से फ्री रेडिकल इस OH के साथ मिलके यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा, और इसके ऊपर आपने पॉजिटिव और फ्री रेडिकल इसके ऊपर प्लेस कर देना है। ये चीज़ जो है ना, ये इसी तरीके से ये है कि अगर आप कन्वेंशनल 6 मेंबर्ड रिंग बनाएं और 1 2 3, सो 1 3 पोजीशन पे अगर आप एक लाइन खींच दें, तो दैट विल बी द सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 3 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर along with 6 member cyclic structure। तो 6 member रिंग आउटसाइड में है, और इंटरनली आपके पास 3 membered रिंग बन सकती है। अच्छा, ये चेयर कन्फर्मेशन के साथ आपको पता है कि एक और कन्फर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन की, एंड दैट इज बोट कन्फर्मेशन। बोट कन्फर्मेशन में आप अगर इस स्ट्रक्चर को ड्रा करें बोट की फॉर्म में, सो यहाँ पे आपका OH अगर हो, सो दिस इज OH, और यहाँ पे H है जो कि 4th पोजीशन पे है। दिस 4th पोजीशन 1 2 3 4 दैट विल अंडरगो द सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म जिस तरह 1 3 में यहाँ पे आपने देखा था,
and that will lead to the formation of 6-membered ring and a 4-membered ring inside the ring. Okay, जो यहाँ से अगर आप ऊपर ड्रा करते हैं तो इसमें आपके m over z जो है वो 18 यूनिट लेस होंगे। 18 यूनिट, वाई 18? बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ H2O। इसमें कोई क्वेश्चन इन 3 मैकेनिज्म में जो साइक्लोहेक्सानोल में हमने देखे हैं? No, sir. ओके, चले लेट्स मूव। अब इसका आप एक्चुअल स्पेक्ट्रम देखें इसी साइक्लोहेक्सानोल का। इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है वो अब क्लियरली ऑब्जर्व हो रही है। व्हाई वी आर सीइंग द मॉलिक्यूलर आयन पीक हियर? बिकॉज इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर आयन पीक आपको नजर आती है। और इसमें अगर आप देखें 99 पे जो पीक है दैट इज योर M-1 पीक। और M-1 पीक आपको मैंने दिखाया अल्फा क्लेवेज से, ये जो अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है that is eliminated to give this peak at 99. उसके बाद this mass 82 peak is due to the loss of 18 unit, 100 minus 82. अगर आप यहाँ पे इसको छोटा सा मैथ करें तो 100 is the molecular weight minus the peak position that is 18. So इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपका H2O एलिमिनेट हुआ है। तो H2O आपका मॉलिक्यूलर आयन से एलिमिनेट होगा, और उसके लिए जो मैकेनिज्म हैं वो डिहाइड्रेशन के हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि आप बोट कन्फर्मेशन से ये मॉलिक्यूल पे रीच कर सकते हैं, सॉरी चेयर कन्फर्मेशन से, और बोट से आप 1,4 को जस्टिफाई कर सकते हैं, और ये 2 पीक उसकी वजह से आ रही है। ओके, जो बेस पीक है किसी भी स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट पीक बेस पीक होती है। बेस पीक वो होती है जो सबसे टॉलर पीक होती है। So that is formed due to some stabilized structure। और ये किस तरीके से बनी है? That has that was generated due to alpha cleavage involving carbon-carbon bond breakage, and then rearrangement of free radical next to the oxonium ion, and then a second alpha cleavage to give this fragment, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। ऑलराइट, अब आ जाते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स सॉरी बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल, because of the presence of aromatic ring, they will give a prominent molecular ion peak because of stability of this ion। तो इसमें फ्रेगमेंटेशन जो साइट ऑफ आयोनाइजेशन है वो आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, इट कैन बी बेंजीन रिंग एज वेल। सो आपने जिस फ्रेगमेंट को जस्टिफाई करना है, यू हैव टू सी द अप्रोप्रिएट साइट ऑफ आयोनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। Usually you will find a strong molecular ion peak whenever molecule contain aromatic ring। और ये वाइस वर्सा है। अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें कि मॉलिक्यूलर आयन पीक काफ़ी टॉलर है, then you should suspect there is aromatic ring in the molecule। Okay, loss of hydrogen give the M-1 peak। Again, this hydrogen, you can understand how this has been eliminated, and that is, of course, when you apply alpha cleavage in such a way that hydrogen become the beta position of the free radical। So अगर आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन M-1 जो हाइड्रोक्सी ट्रोपिलियम आयन है, जिस तरह हमने अल्काइल चेन के साथ देखा था कि whenever benzene ring has a alkyl substituent, that will give us 7-membered aromatic system, जिसको हम ट्रोपिलियम आयन कहते हैं। तो अब यहाँ पे भी हमें वही सिचुएशन मिल रही है कि अगर आयोनाइजेशन आप एज्यूम करें, चलें इस सारे मैकेनिज्म को हम वन बाय वन देखते हैं।
सो आपने पहले तो बेंजीन रिंग को आयोनाइज किया, and one of the double bond will lose electron, and then you do the alpha cleavage. Alpha cleavage में आपके पास this is alpha position, this is beta position. Okay, let's repeat it in a different way because the alpha position is not giving us. आपको यही चीज यहाँ पे देखनी चाहिए कि जब आप ये परफॉर्म कर रहे होंगे मैकेनिज्म एंड यू आर ट्राइंग टू लूज सम mass from your peak, then you have to see where the fragmentation should take place. That should be a logical place. So let's put the free radical at a different place. Let's put free radical here and see how we can go. So am I doing something different? Okay, so it is given here. So let's start from this place. So free radical and the positive charge that will take place on oxygen, we will have the m over z at 108 for this molecule, which is clearly present in the spectrum. And then alpha cleavage from this place. अब यहाँ से जो हाइड्रोजन है, that is your beta position. So यहाँ से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा and we will have this peak at 107 which is m-1. और इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक ट्रोपिलियम आयन टाइप एक रेडिकल बन रहा है, एक कार्बोकैटाइन बन रहा है जो 7 मेंबर्ड रिंग है, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ट्रोपिलियम आयन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH. और इसका मैकेनिज्म लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज आपका बेंजिलिक पोजीशन पे आता है तो यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सटेंड होता है और फिर उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाली पोजीशन पे मूव करते हैं. यानी आप इसको रिवाइज करते हैं जो पहले हमने मैकेनिज्म किया था. So that will become 7 membered ring. इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. So 1, 2, 3. This pen is not precise, so I have to redraw this. Okay, so okay, that is 7 membered ring. So that was the original double bond position. Then we have double bond, then we have double bond, and now यहाँ पे आपने इसको चार्ज को मूव किया है तो जहाँ से आपका चार्ज यहाँ से इस पोजीशन से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज विल बी एट दिस प्लेस और यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा and then 1H is already sitting here. So अब ये H जो है that will move to the next position to give this ultimate 7 member hydroxytropylium ion. So hydroxytropylium ion में आप देखें कि दो तरह की फ्रेगमेंटेशन हो सकती है. एक तो इसमें एसेटिलीन एलिमिनेट हो सकती है जिस तरह हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. दूसरा ये है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल
and that could be predominant loss from hydroxytropylium के इसमें आपका जो कार्बन ऑक्सीजन ये जो साइट है that will be eliminated as carbon monoxide और हाइड्रोजन जो है that will become part of your ring. तो इसमें जो 79 का जो लॉस हुआ है यहाँ पे 28 का, तो 28 के लॉस से आपके पास पीक जनरेट होती है 79 की, and that 79 peak is your base peak in this spectrum. और उसके बाद यहाँ से दो हाइड्रोजन हैं, तो दो हाइड्रोजन अगर यहाँ से एक कार्बन कार्बन बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन अंदर रिलीज करे, तो उसके बाद यहाँ से इस हाइड्रोजन के साथ आप अटैक करें, so this hydrogen attack on this hydrogen as a hydride, and that will cause the elimination of hydrogen gas, and then aromatic ring will be restored and we will have a peak at 77. और उसके बाद आप स्मॉलर पीक जो हैं दे आर जस्ट द एलिमिनेशन ऑफ 26 यूनिट मास फ्रॉम दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर. ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क नाउ बिफोर वी गो. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, अगर सीओ को दोबारा अगर आप बता दें. सीओ जब भी आपके पास कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड होगा and carbon is carrying a positive charge, or if it is a part of a cyclic structure, then carbon monoxide is always eliminated. Okay, इसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ये जिस तरीके से ट्रोपिलियम आइन है, इसमें आपको जिस तरीके की रीअरेंजमेंट हो रही है उसी तरीके की रीअरेंजमेंट आपने यहाँ पे परफॉर्म करनी है. उसमें डेफिनेटली आप सबसे पहले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, they will attack on the positive charge will move to the oxygen, and then जो दो बॉन्ड है यहाँ पे they will participate in the formation of carbon oxygen triple bond with the free radical with the two lone pair on both side of carbon and oxygen. तो इस तरह ये बॉन्ड, इसका मैकेनिज्म मैं आपसे जो है एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप इस लेवल पे ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स हैं वो आपको याद रहेंगे. दैट विल कॉज सम कंफ्यूजन. अभी आपने सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड देखें, देयर इज ए चांस के उसमें 28 का लॉस होगा बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. तो आपने कार्बन मोनोक्साइड को एलिमिनेट कर दें और 7 मेंबर्ड रिंग में से एक का रिंग अगर निकल जाएगी तो यू आर लेफ्ट विद 6 मेंबर्ड रिंग. और उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो आप जंक्शन पॉइंट पे इसको लगा देंगे. इसको आप क्विकली अगर आपने मार्क करना हो विदाउट बॉदरिंग के मैकेनिज्म इसका क्या है, तो आप इस तरीके से इसको जो है वो याद रख सकते हैं. ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो दिस बॉन्ड अटैक हियर एंड देन वन हाइड्रोजन जस्ट मूव हियर. सो यहाँ पहले एक हाइड्रोजन है और उसके बाद दूसरी हाइड्रोजन आके तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन आपकी बना देगी, एंड देन कार्बन मोनोक्साइड, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन दैट विल एलिमिनेट एज कार्बन मोनोक्साइड. ओके, और क्वेश्चन? चले, लेट्स मूव टू द फिनोल. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन रिंग आपके पास बनी हुई है. So you should expect the loss of carbon monoxide somewhere in the fragmentation. तो ये भी एक clue है to determine the fragmentation pattern. Okay, so phenol में जो ionization site है, again that can be oxygen, that can be benzene ring. You have to place them wherever the fragmentation is appropriate. So let's put the radicals and positive charge site inside the ring
and see what type of fragments are formed when you apply alpha cleavage, beta cleavage, and other type of mechanism. So alpha cleavage जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, so it is indicating कि hydrogen should be eliminated from phenol ring, and that will give us M-1 peak. So अगर यहाँ पे 93 इसका molecular ion peak है, तो 93 पे आपको इसकी fragment peak मिलेगी. ओके अब अगर आप रेडिकल कैटायन को ऑक्सीजन पे रखते हैं, तो यहाँ पे भी आप अल्फा क्लीवेज अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे तो आपके पास अल्फा कार्बन ये बनती है और बेटा आपके पास ये रिंग के अंदर है। तो आप यहाँ पे 2 आपको बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, अदरवाइज नो फ्रैगमेंट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मॉलिक्यूलर आयन पीक। ओके, सो हम पहले अल्फा क्लीवेज अप्लाई करते हैं, या आप इसको इससे और भी इजी मेथड से आप कर सकते हैं अगर आप अल्फा क्लीवेज से ना करना चाहें, एंड दैट इज कीटो इनोल टाटोमरिज्म। अगर आप इस चीज को देखें तो आपके पास ये अल्कोहल पार्ट है और ये ईन या अल्कीन पार्ट है, तो ये कीटो इनोल टाटोमरिज्म, it is a very common mechanism in organic chemistry. So आपके फ्री रेडिकल और कैटाइन ये तो आप उसी जगह पे बैठे हुए हैं. Only one hydrogen has shifted to one of the beta position. इसको हम 1-3 shift भी कह सकते हैं कि यहाँ से 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है और अभी तक इसमें कोई लॉस नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप अल्फा क्लीवेज अप्लाई करें तो आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करके तो फ्री रेडिकल जो है वो इस बीटा पोजीशन पे बैठ जाएगा। अब इसमें जिस तरह हमने अल्कोहल में देखा था, साइक्लिक अल्कोहल में, कि दिस फ्री रेडिकल इज नॉट स्टेबल एट द रिमोट पोजीशन। If somehow it can move next to the triple bond जहाँ पे कार्बोनिल बैठा हुआ, तो then it will be more stabilized. लेकिन अल्कोहल की फॉर्म में हमने देखा था कि ये हाइड्रोजन है, they are closer to the free radical site. So one of the hydrogen was participating in the stabilization step. अब यहाँ पे जो बेटर इलेक्ट्रॉन हैं दे आर पाई इलेक्ट्रॉन। सो जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे विल बी प्रेफरेबली undergoing this rearrangement than the sigma electron of carbon hydrogen bond. So हम यहाँ से ये one of the free pi electron that will make bond with the free radical to give this sort of cyclic structure. Okay, अब इसमें यहाँ से अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है, बाकी कोई चीज़ यहाँ ब्रेक नहीं कर रही। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सिंगल इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होगा, that will generate another bond between these two carbons. और यहाँ से अगर आप इजीली देखें कि जो इंडक्टिव क्लीवेज है, 2 electron that will move toward this carbon to neutralize this positive charge, और चार्ज जो है वो आपका इस कार्बन पे मूव हो जाएगा, and that will cause the removal of carbon monoxide from the ring. ओके, अब इसके बाद आपके पास जो फ्रैगमेंट बनेगा दैट इज 66 फ्रैगमेंट, और उसके बाद आप सॉर्ट ऑफ अनदर अल्फा क्लीवेज अगर आप करें कि यहाँ से फ्री रेडिकल है वो अल्फा की तरफ आया, अब अल्फा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा, वन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन विल काज the terminal hydrogen to be eliminated, क्योंकि इस मास से भी यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो सकता है, so that will give a peak at
65, क्योंकि 65 66 से 65 की पीक बनाने में आपको एक हाइड्रोजन लूज करना है। अभी तक आपने एक चीज नोट की होगी कि ऑल मैकेनिज्म्स विच आर कंट्रोल्ड बाय फ्री रेडिकल, दे आर टाइप ऑफ अल्फा क्लीवेज। वो एक किसी जगह पे एक हो रही है, किसी जगह पे एक्सटेंडेड फॉर्म में आगे जाके किसी फ्रेगमेंट को लूज कर रही है। तो आप इसी पैटर्न को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो you will see different logical losses will be happening in these fragment, these ions. So this is the spectrum of phenol. First, you observe a very tall molecular ion peak, 94 पे. This is base peak. That indicate कि आपका जो system है, molecule है, that is aromatic in nature. Loss of one electron is the alpha cleavage happening because of hydrogen ion. Okay, and then loss of 28, that is the loss of carbon monoxide, जो हमने टू मैकेनिज्म में इसको देखा था कि पहले आपने कीटो इनोल टाटोमरिज्म किया, उसके बाद अल्फा क्लीवेज, फिर स्टेबलाइजेशन एंड देन लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइप मैकेनिज्म है जो लॉस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद 66 से 65 का जो लॉस हुआ था दैट वाज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जिसको भी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था। इसमें क्वेश्चन? No question, then we will move to the next classes, class of compound, which is ether. Ether have a very weak molecular ion peak because of instability of molecular ion, but that is observable, meaning that you will see a very small peak as molecular ion peak. And the fragmentation pattern is identical to the alcohol. अल्कोहल में आपने देखा था जो कॉमन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है दैट इज अल्फा क्लेवेज। इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। दिस इज अ ईथर व्हिच इज आयोनाइज्ड एट ऑक्सीजन and you have alpha position here, beta atom here, beta here, so beta here. So we have a lot of mechanisms which can take place from a single molecular ion peak. Okay, so one alpha cleavage, when you are taking this carbon as a beta carbon, that is your fragment with the molecular ion, with the M over Z 87. Okay, inductive cleavage can also take place, and inductive cleavage, just to give you a reminder, whenever positive charge is on heteroatom with electronegative atom, then the bond adjacent to those atom will donate the complete 2 electron to neutralize this charge. और इससे आपका जो चार्ज है दैट विल मूव टू द कार्बन फ्रेगमेंट एंड हेटेरोएटम विल बिकम न्यूट्रलाइज्ड। ओके, अब यहाँ पे एक एडिशनल मैकेनिज्म है। जो कॉमन मैकेनिज्म है वो आपको मेरे ख्याल आप तक याद हो चुके होंगे कि वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन सम टाइम unique mechanism appear and I mention them whenever they appear. और ईथर में आपने ये देखना है कि when alpha carbon is branched, जैसे यहाँ पे alpha carbon है, this is branched, it has a 2 beta atom. तो जब ये situation होगी, then you have to be very careful. The oxonium ion, जिस तरीके से ये oxonium ion 87 पे जो बना है, that will undergo another alpha cleavage, and that will take place through a beta hydrogen rearrangement. अच्छा, ये हमें कैसे पता चलता है? रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? जब भी रीअरेंजमेंट होती है तो हमें एक क्लू याद रखना चाहिए। वो क्लू मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मोस्टली इवन फ्रैगमेंट से, इवन मैस से
आपको पास ऑड मैस मिलता है, या ऑड मैस से इवन मैस मिलता है, तो ये रेसिप्रोकेट करता है। ये अगर आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंपल फ्रेगमेंटेशन। और इसका जो वेल नोन मैकेनिज्म है वो है अल्फा क्लीवेज। अल्फा क्लीवेज इज ए सिंपल फ्रेगमेंटेशन। लेकिन सम टाइम हम देखते हैं कि इवन मैस से इवन मैस प्रोड्यूस हो रहा है, इवन मैस गिव राइज टू इवन फ्रेगमेंट, और ऑड मैस से आपके पास ऑड मैस अगर निकलता है। तो अगर ये इस तरीके की ऑब्जर्वेशन आप देखें, दैट विल बी रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और टू बॉन्ड ब्रेकेज, टू बॉन्ड ब्रेकेज। तो ये दो क्लू आपने याद रखने हैं कि इवन मैस ऑड मैस से ऑड मैस अगर निकल रहा है तो या तो रीअरेंजमेंट हो रही है सम सॉर्ट, या फिर टू बॉन्ड क्लीवेज हो रही है। तो अब ईथर में भी अगर आप ईथर में अल्फा कार्बन आपको ब्रांच्ड मिलती है तो उसमें भी रीअरेंजमेंट का चांस होता है। तो इसका अल्टरनेट जो आपने देखना है, अगर आपने स्पेक्ट्रम में ये चीज ऑब्जर्व की है तो उसका मतलब होगा रीअरेंजमेंट हुई है। और रीअरेंजमेंट का क्या मतलब होगा? अगर ये ईथर है तो हम कहेंगे कि इसकी जो अल्फा पोजीशन दैट मस्ट बी ब्रांच। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू है जो आपने अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑक्सोनियम आइन है जो 87 पे हमने प्रोड्यूस किया था बाय सिंपल क्लीवेज, इसमें जो अल्फा पोजीशन है दैट इज ब्रांच्ड, एंड ब्रांच में जो बेटा पे हाइड्रोजन है दैट विल मूव टूवर्ड ऑक्सीजन। तो उसके बाद आप ये देखेंगे इस तरह का एक फ्रेगमेंट बनेगा जिसका मैस जो है वो 45 है। अब ये देखें ऑड से ऑड मैस जो है वो जनरेट हो रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लू इंडिकेटिंग के ये रीअरेंजमेंट हो रही है। तो अगर आप स्पेक्ट्रम को देख रहे होते हैं, स्पेक्ट्रम में आपको अगर फाइंड आउट करते कि 87 से फ्रेगमेंट निकला है 45 which is odd fragment from the odd mass, we would have translated that information into a rearrangement, और rearrangement से हमने इसको ट्रांसलेट किया होता कि इसकी अल्फा पोजीशन ब्रांच्ड है। ओके, ये समझ आ गया ये पॉइंट? अगर किसी को नहीं आया तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। चले ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ये मास स्पेक्ट्रम है इसी आइसोप्रोपाइल ईथर का। तो इसमें आप 87 पे देख सकते हैं इसकी अल्फा क्लीवेज से पीक है। उसके बाद 45 पे ऑड से ऑड पीक जो बेस से निकल रही है। तो दैट इज क्लू ऑफ द rearrangement, and that further tell us that alpha position is branched. ओके, इसके अंदर अगर आप देखें कि अगर ईथर के अंदर गैमा हाइड्रोजन मौजूद है देन दे विल ऑलवेज अंडरगो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो ये ऑन टॉप ऑफ द बेटा रीअरेंजमेंट है जो अभी आपने परफॉर्म की है। तो इसमें मैक्लेफर्टी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास अल्फा और बेटा तक की एटम है। अगर आपके पास एक कार्बन और होती यहाँ पे तो उसके साथ जो हाइड्रोजन है दैट वुड हैव अंडरगॉन मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। ओके, एल्डिहाइड ये कार्बोनाइल कंपाउंड दे आर प्रिटी आइडेंटिकल इन देयर बिहेवियर। तो इसलिए एल्डिहाइड पे जो आप फाइंड आउट करेंगे इंफॉर्मेशन दे आर प्रिटी मच सिमिलर टू कीटोन एज वेल। सो एल्डिहाइड में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है दैट इज वीकर
बट ऑब्जर्वेबल जस्ट लाइक ईथर। लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड एरोमेटिक रिंग के साथ आ रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड गिव द वेरी prominent molecular ion peak. So you could see a strong peak if aldehyde is aromatic in nature. So major mode of fragmentation, you can guess now, you should guess now at this point कि major fragmentation pattern क्या होगा? अल्फा क्लीवेज होगी, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन इज द साइट ऑफ आयोनाइजेशन, and from here we have two beta atoms. So ये आपका कार्बन, this is alpha. You can go at this point to make hydrogen as a beta atom, or you can go in this side to make carbon as a beta atom. So हम दोनों मैकेनिज्म में इसको देखते हैं कि कौन से फ्रैगमेंट बनते हैं। So 86 is the molecular ion peak. So first आप जब कार्बन को बेटा एटम बनाते हैं, then we have the loss of this butyl radical. ये यहाँ पे आपके बेटा एटम पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, and then mass of 29 will be eliminated. और अगर आप हाइड्रोजन को बेटा एटम बनाते or with the same alpha cleavage, you would have lost hydrogen, and then we would have a mass of 85, which is simply m-1 loss of hydrogen. So ये दोनों alpha cleavage से fragmentation हुई है। इंडक्टिव क्लीवेज यहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन आपने याद रखना है कि इंडक्टिव क्लीवेज के दो मैकेनिज्म है। एक तो ये है कि इफ यू हैव ए चार्ज हेटेरोएटम with double bond, and second is when a charged atom is with a single bond. तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो दिस सिंगल बॉन्ड विल गो डायरेक्टली टुवर्ड ऑक्सीजन, और अगर डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, जस्ट लाइक ए सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक नया जो है वो लुईस स्ट्रक्चर जनरेट होता है जिस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। ओके, अब कार्बन के साथ जो लोन पेयर है दैट विल मूव ऑन डबल बॉन्ड। तो इसलिए कुछ टेक्स्ट में इसको डायरेक्टली इस तरीके से भी इंडिकेट किया होता है कि दिस लोन पेयर विच इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन दैट मूव ऑन कार्बन, एंड देन कार्बन ऑक्सीजन लोन जो बॉन्ड पेयर है दैट मूव ऑन ऑक्सीजन। ओके, सो फॉर द इंडक्टिव क्लीवेज आप सबसे पहले तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करेंगे इस डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो डबल बॉन्ड से करेंगे तो उसके बाद चार्ज आपका यहाँ पे मूव करेगा, और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्फा बेटा के दरमियान जो बॉन्ड है दैट विल कंट्रीब्यूट। तो अब आपके पास जो फ्रेगमेंट बनेगा वो दैट विल हैव ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन, and free radical will be lost with the oxygen. So m/z is 43 for this. तो यहाँ इसका स्पेक्ट्रम है इस एल्डिहाइड का। यू कैन आइडेंटिफाई ऑल प्रोमिनेंट पीक। आप यहाँ देखें, इट हैज ए अल्फा बेटा एंड गैमा। आप बाकी सारी पीक यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। -1 पीक भी यहाँ पड़ी हुई है। 43 की पीक आपने देखी जो प्रीवियसली बनी है। यहाँ बेस पीक 44 है। इवन मैस से इवन मैस बना हुआ है। यू शुड गेस नाउ व्हाट कुड हैव हैपेंड। एनीवन? इवन मैस से इवन, जी सॉरी, रीअरेंजमेंट हुई सर। रीअरेंजमेंट हुई है, और रीअरेंजमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल में गैमा हाइड्रोजन है दैट रीअरेंजमेंट इज द मैकलेफेर्टी रीअरेंजमेंट। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखें कि 86 से अगर 57 निकला है तो दैट इज ए नॉर्मल, लेकिन 86 से 58 अगर आप एलिमिनेट करते हैं दैट वुड बी ए रीअरेंजमेंट। ओके, सो मैकलेफर्टी से आपका जो 44 का मैस इसमें से एलिमिनेट होता है। ओके, कोई क्वेश्चन?
ये अभी तक आप मुझे जनरली बताएं सारे कि आपको ये मेक सेंस कर रहा है ये सारी चीजें? Yes, sir. Anyone who is totally confused and think that I don't know what is going on? Anyone? ओके, चलें। कीटोन एल्डिहाइड से आइडेंटिकल फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। इसमें हम साइक्लोहेक्सानोन जो है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें जो यूनिक मैकेनिज्म है, मैं यहाँ दो स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। एक को हमने आज सबसे पहले डिस्कस किया था, साइक्लोहेक्सानोन, और एक इसी से मिलता-जुलता स्ट्रक्चर इस तरह भी हो सकता है जो साइक्लोहेक्सानोन है। ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। तो इन दोनों के अंदर अगर आप बीटा एटम इसको बनाते हैं, कार्बन को, तो इनके जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। इसलिए अगर आपने साइक्लिक अल्कोहल का मैकेनिज्म जो यूनिक मैकेनिज्म है, वो अगर आपने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है, वो मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। वो क्या था? अल्फा क्लीवेज, उसके बाद क्या था? स्टेबलाइजेशन, और फिर अल्फा क्लीवेज। और यहाँ पे चूंकि दोनों फॉर्म में हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द स्टेबलाइजेशन। Okay. So alpha cleavage with the beta inside the ring, that will cause the formation of free radical, and then one of the hydrogen will contribute to bring this free radical next to carbonyl, and this is called the stabilized free radical. अब यहाँ से आप अल्फा क्लीवेज अगर आप अप्लाई करें, जो अल्फा क्लीवेज, stabilization and alpha cleavage, you will see the fragment here with the positive charge. So this mass is 55, जो कि even mass से odd mass है, तो that's the normal alpha cleavages mechanism. अच्छा, उसके बाद आपने अल्फा क्लीवेज अप्लाई की, स्टेप फ्री रेडिकल स्टेबलाइजेशन एंड देन अल्फा क्लीवेज, तो ये मैकेनिज्म आपने देखना है। उसके बाद आपका ये जो स्टेबलाइज्ड फ्री रेडिकल है, दैट कैन एलिमिनेट कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल। तो उसमें आप इसको अगर आप देखें कि फ्री रेडिकल यहाँ से जो अल्फा क्लीवेज में अगर आप देखें, तो दिस फ्री रेडिकल इज यूजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्फा बीटा बॉन्ड। यहाँ पे यही फ्री रेडिकल एक रिमोट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है। तो रिमोटली आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से पुल किया है, और उसके बाद मेथल जो है CH3, वो इसके अंदर से एलिमिनेट हो गया। अगर आप इसका टोटल मास देखें और उसमें से 15 को लेस करें, तो यू विल सी ए पीक एट 83। और यहाँ 83 से ऑफ कोर्स आप यहाँ से अगर बीटा इंडक्टिव क्लीवेज करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर एलिमिनेट हो जाएगी, और उसके बाद आपको एडिशनल पीक भी इसमें से मिल सकती है। ओके, सो स्पेक्ट्रम ऑफ साइक्लोहेक्सानोन, इसमें मॉलिक्यूलर आयन पीक आप देख सकते हैं। इसमें पीक एट 83 आपको नजर आ रही है, पीक एट 55 नजर आ रही है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है कि कैन यू आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म by which the peak at 42 has been formed and the peak of 70 has been formed. दोनों में इवन मैस से इवन फ्रेगमेंटेशन हुई है। ये आपके लिए अभी हमारे पास 20 मिनट है। आप देख के 1 मिनट में आप मुझे इस पे थिंक करें, मैकेनिज्म अप्लाई करें और देखें कि 42 की जो फ्रेगमेंटेशन है या 70 की फ्रेगमेंटेशन कैसी हुई है। ओके, यू कैन स्टार्ट नाउ।
सर 70 की जो फ्रेगमेंटेशन है वो CO बॉन्ड की वजह से हुई है। वेरी गुड। तो CO बॉन्ड आपने कैसे इसमें से एलिमिनेट किया है? बाय 2 बॉन्ड क्लीवेज। यस सर। आपके यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, 1 2, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो फिर इसमें से CO निकलेगा। तो इसीलिए आपको ये पहला क्लू ये था कि कहीं से 2 बॉन्ड ब्रेक करके हम कोई चीज़ निकाल सकते हैं एंड दैट इज़ CO, एंड यू आर करेक्ट हियर। सो दिस इज़ CO एलिमिनेशन। 42 का भी इसी तरीके से आप लोग गेस करिएगा, दैट इज़ योर होमवर्क। आप बड़े आराम से इसके सारी फ्रेगमेंटेशन चेक करें, सारे मैकेनिज्म अप्लाई करें और उसके बाद देखें कि इज़ देयर एनी वे दैट वी कैन यूज़। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर फ्रेगमेंटेशन आपके मॉलिक्यूलर आयन से ही निकले। ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई एक फ्रेगमेंट बना है FR विद ए पॉजिटिव चार्ज, या कोई फ्रेगमेंट बना है पॉजिटिव एंड फ्री रेडिकल। इन दोनों में फ़र्क है। दिस इज़ इवन इलेक्ट्रॉन और दिस इज़ ऑड इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इवन इलेक्ट्रॉन है दैट विल अपीयर एज ऑड मास, और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है दैट विल अपीयर एज इवन मास। तो ये आपने थोड़ा-सा इसका जो एल्गोरिदम है ये आपने याद रखना है, इससे आइडेंटिफाई। तो अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि मैं आपका जो मॉलिक्यूलर आयन फ्रैगमेंट होता है किसी भी डॉटर फ्रैगमेंट में, तो ये भी आगे कोई बहुत सारे मैकेनिज्म दे सकते हैं। इसमें आप अल्फा क्लीवेज कर सकते हैं, इसमें इंडक्टिव क्लीवेज, बीटा क्लीवेज भी कर सकते हैं। इसमें रीअरेंजमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप इन सारे पॉसिबिलिटीज़ को भी देखें। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड I will expect all of you are able to uh, predict fragmentation of any given molecule. कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैं ड्रा करूं तो आपको उसकी फ्रेगमेंटेशन की प्रिडिक्शन आनी चाहिए। उसमें आपने बार बार अल्फा क्लीवेज लगानी है। जो फ्रेगमेंट बनते हैं उसके अंदर देखें कि फर्दर अल्फा क्लीवेज पॉसिबल है, या उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, या उसके अंदर कोई बेटा इंडक्टिव और कुछ दूसरे जो मैकेनिज्म है वो अप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो ये स्किल अब तक आपके अंदर आ जानी चाहिए। इसके साथ ही हम जो एरोमेटिक कीटोन है इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर हम छोटी-सी एक एक्सरसाइज़ करेंगे, जिसमें हम स्पेक्ट्रम को लेंगे और उससे स्ट्रक्चर एलुसिडेट करेंगे, जो कि दूसरा स्टेप है, वो हम आज से स्टार्ट करेंगे। ओके। एरोमेटिक कीटोन में आपके पास जो आयोनाइजेशन है दैट कैन टेक प्लेस ऑन एरोमेटिक रिंग एंड ऑक्सीजन, ये मैंने पॉइंट सेवरल टाइम रिपीट कर दिया है। देयरफॉर टू टाइप ऑफ मैकलैफर्टी आर पॉसिबल। ये शायद पहले बात नहीं हुई। यानी अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मैं इसको ड्रा करता हूँ। ये आपके पास कीटोन है, लेट्स से ये मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर आप फ्री रेडिकल यहाँ रखते हैं तो उसके बाद आपके पास जो अल्फा है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बेटा, दिस इज गामा। अच्छा, याद रखें कि ये जो अल्फा है ना, जो मैकलैफर्टी के लिए है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। जब आपने इंडक्टिव क्लीवेज करनी है, जब आपने इंडक्टिव क्लीवेज करनी है, तो देन दिस कार्बन इज द अल्फा। ओके, क्योंकि हम फ्री रेडिकल को बेस बना रहे हैं। लेकिन जब मैकलैफर्टी देखनी है तो फिर फंक्शनल ग्रुप का हमने अल्फा देखना है, कि पूरा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल, उसका अल्फा एटम, देन उसका बेटा एटम, देन गामा। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों से मिस होगा ये पॉइंट। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि इंडक्टिव क्लीवेज के लिए अल्फा ये कार्बन है जो फ्री रेडिकल साइड के साथ है। लेकिन मैकलैफर्टी के लिए अल्फा आपको वहाँ से देखनी है जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। ओके।
सो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है तो फिर गैमा ये हाइड्रोजन बनती है, लेकिन अगर आपका फंक्शनल ग्रुप बेंजीन है तो फिर आपका अल्फा कार्बोनिल ये है, उसके बाद बेटा ये हो जाएगी, उसके बाद गैमा ये हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, फंक्शनल विच फंक्शनल ग्रुप यू आर टारगेटिंग। Therefore, for aromatic ring, there are two possible site of McLafferty. Okay. So हमारे पास अगर फ्री रेडिकल ये है तो अब आपने अल्फा आपका ये बना, क्योंकि यू आर टेकिंग द होल रिंग एज योर फंक्शनल ग्रुप। दिस इज योर Fg। तो अल्फा आपका कार्बोनिल बना, बेटा और गैमा पे हाइड्रोजन है। अब दिस हाइड्रोजन will undergo rearrangement, okay, and then we will have a ketene type intermediate with a molecular weight 106। लेकिन अगर आपका फ्री रेडिकल ये है, then आपका गैमा हाइड्रोजन, अब this is your functional group, then alpha is this, beta and gamma। तो ये काइंडली इसको कंफ्यूज नहीं करना with the not mutually together, not with the inductive cleavage, okay, अल्फा क्लीवेज, सॉरी मैं इंडक्टिव कह रहा हूं बार बार, अल्फा क्लीवेज। क्वेश्चन? ऑलराइट, चलें जी, हम पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये आपको एग्जाम में स्पेक्ट्रम आ गया कि दिस इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ अननोन कंपाउंड, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर आयन पीक आप 100 को एज्यूम कर लें। तो उसके बाद आपने फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इसका देख रहे हैं, तो यू हैव टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, अगर आपको ये मॉलिक्यूलर आयन का टेबल दिया हुआ है, दैट इज वेरी ग्रेट हेल्प, क्योंकि आपको कोई चीज़ मेजर नहीं करनी। आपको पता है कि जो 100 पे पीक है उसकी हाइट जो है वो 19.6% है। 6% परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू 43। अगर आप 43 को देखें ना, तो दैट पीक इज बेस पीक, जो भी 100% जिसको भी आप कहेंगे दैट इज बेस पीक, और बाकी सारी पीक की हाइट जो है वो इस बेस की परसेंट पीक है। सो मॉलिक्यूलर आयन पीक इज 19.6% ऑफ द बेस पीक। तो इसमें जो 101 है, ये क्या है आपका? दिस इज M+1 पीक, जो आइसोटोपिक पीक है। आइसोटोपिक पीक आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले क्या करें, आपको मॉलिक्यूलर आयन का पता चल गया, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द मॉलिक्यूलर आयन पीक। आपके पास 100 है, तो पहला स्टेप मैं इसको कह देता हूँ, दिस इज स्टेप 1। जो आपने करना है कि पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करो। तो उसके लिए आप कहते हैं कि 100 सीम्स मॉलिक्यूलर आयन पीक। कैसे सीम? क्योंकि देयर इज अ लॉजिकल लॉस ऑफ 11529। अगर इसके बाद जो फ्रेगमेंट बना है वो 85 का है, दैट इज अ लॉस ऑफ 15 विच इज मैथल ग्रुप। उसके बाद 71 का है, तो दैट इज लॉस ऑफ 29। तो इसका मतलब ये है कि अगर लॉजिकल लॉस हो रहा है इस पीक से, तो यहाँ पे ये 1 का भी यहाँ पे हल्का सा नज़र आ रहा है, इफ़ यू कैन सी। सो दीज लॉसेस आर लॉजिकल लॉस। सो हमें कोई रीज़न नहीं है कि कोई हम एम्बिग्युइटी शो करें कि 100 इज नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन पीक। सो अगर 100 मॉलिक्यूलर आयन पीक है तो रूल ऑफ 13 अप्लाई करें एंड यू गेट द बेस फार्मूला। अच्छा, बेस फार्मूला अगर आपका आ जाए तो यहाँ से सारा अपने स्पेक्ट्रम से हेल्प लेनी है। तो स्पेक्ट्रम में आपने सबसे पहले ये कैलकुलेशन करनी है कि आपके पास जो मॉलिक्यूलर आयन की पीक है, सो आपका जो M+1 जिसको आप कह रहे हैं, M+1 पीक, इसकी जो इंटेंसिटी है इसको डिवाइड कर दें M की पीक से, जो M+ की पीक है, पीक इंटेंसिटी, और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ दीज टू पीक टुगेदर। क्योंकि हमें ये जो M+1 है ना, ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है मॉलिक्यूलर आयन की परसेंटेज से।
अच्छा, अब M+1 की इंटेंसिटी है 1.3 और M की जो इंटेंसिटी है दैट इज 19.6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये जब आप करते हैं तो आपके पास जो परसेंटेज आती है दैट इज 6.63%। ओके, अब जब आपके पास ये पता चल गया कि आपकी जो M+1 है दैट परसेंट ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक, तो अब आपने जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कितने कैसे फाइंड करना है। तो आपकी जितनी परसेंटेज आई है इस परसेंटेज को कार्बन 13 की परसेंटेज से डिवाइड कर दें जो 1.1 है। तो 1.1 कार्बन 13 है, ये आपको बताता है कि आपके फार्मूले में तकरीबन 6 कार्बन होनी चाहिए। बेस फार्मूले में आपके पास 7 कार्बन है और आपकी M+1 रेशियो बता रही है कि देयर शुड बी 6 कार्बन। इसी चीज को हम प्रीवियसली ऐसे गए थे कि आप 7 को अगर मल्टीप्लाई करें 1.1 से और उसके बाद +16 को मल्टीप्लाई करें 0.02 से, उसके बाद आप जब ऐड करेंगे तो हमें जो परसेंटेज आएगी दैट विल बी हायर देन 6.63। तो हमने उस वक्त कहा था कि एक कार्बन लेस करें। तो यहाँ डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं कि आप 1.1 पे डिवाइड कर दें जो भी परसेंटेज आती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 6 कार्बन होनी चाहिए आपके फार्मूला में। सो टू अकाउंट फॉर 7th कार्बन हमें एक ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड करनी है। तो ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आप CH4 उसमें से एलिमिनेट करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो प्लीज सर जल्दी आप बताइएगा क्योंकि ऑक्सीजन, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। जी बेटा बताएं। सर ऑक्सीजन मतलब कैसे मालूम हो किसमें ऑक्सीजन है? हमने एक कार्बन लेस करनी है, तो एक कार्बन लेस करने के आपके पास ऑप्शन ये है कि आप तो या तो कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस करें या फिर नाइट्रोजन से करें। तो नाइट्रोजन हम अप्लाई नहीं कर सकते, वाई? कोई बता सकता है कि नाइट्रोजन से रिप्लेस क्यों नहीं किया? You guys sitting or you are why we have only 4 people सर बाकी and बताने only का 3 people? So all others are disappeared. As so shameful. I will ask these guys in next class. Okay, this is not the appropriate attitude. Okay, हमने एक नाइट्रोजन इसके अंदर इसलिए ऐड नहीं की कि बिकॉज वेन एवर वी हैव नाइट्रोजन इन ऑड नंबर योर mass should be molecular ion peak should be an odd number. अब हमारे पास जो पीक है वो इवन है, तो इवन के लिए या तो हम 2 नाइट्रोजन ऐड करेंगे। 2 नाइट्रोजन ऐड करने के लिए हम 2 कार्बन इसमें से एलिमिनेट करनी पड़ेगी और 2 कार्बन एलिमिनेट करते हैं तो C5 हो जाता है और वो रेशो से कंपैटिबल नहीं है। हमारी जो ठीक है सर। M+1 की रेशो है दैट इंडिकेट देयर शुड बी 6 कार्बन इन योर मॉलिक्यूल। तो एक नाइट्रोजन हम अगर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ इशू क्रिएट होता है और अगर 2 नाइट्रोजन करते हैं तो यहाँ इशू क्रिएट होता है, इसलिए आई डिड नॉट ऐड एनी नाइट्रोजन। उसके ठीक बाद है सर, ऑप्शन थैंक है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मैंने जब इसमें रिप्लेस किया तो एक ऑक्सीजन ही हम कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, चलें नेक्स्ट। हमने एक ऑक्सीजन के साथ इसका IHD निकाला। IHD के से हमें या तो इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और इट इज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करना है कि डू यू हैव ए डबल बॉन्ड कार्बोनिल और ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो उसके लिए आप सारी जो लिस्ट अपनी लिस्ट बना लें जो भी मैथ्स इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो मैथ्स इसमें 100 है, 85 है, 71 है, 57 है, 43 है, 29 है। इसके बाद मैक्सिमम आपने एक लिस्ट बना ली
और लिस्ट के बाद इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास अगर इवन मैस है तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड मैस है तो सारे इवन इलेक्ट्रॉन है। इवन इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देयर इज नो फ्री रेडिकल इन देम। ओके, और इनके दरमियान जो अगर आप देखें डिफरेंस है 85 से 71 में डिफरेंस 14 का, 71 से 51 14 का, तो इनमें डिफरेंस 14 का आ रहा है। और आपको बताया था कि व्हेन एवर यू हैव ए डिफरेंस ऑफ 14 आर दे CH2 इंडिकेटिंग ए लीनियर अल्केन। अगर आपके पास ये लगता है कि ये लीनियर अल्केन है तो इज दिस ए एन हेप्टेन? आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि हमारे पास जो है एक ऑक्सीजन इसके अंदर लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन डाल के तो फिर इसका फार्मूला जो है ना वो एस्टेब्लिश किया था। तो एन हेप्टेन जो है वो ऑल्दो स्पेक्ट्रम फ्रेगमेंटेशन से इंडिकेट हो रहा है कि दिस इज एन हेप्टेन, बट वी हैव टू पुट वन ऑक्सीजन इन इट। सो दिस इज नॉट द करेक्ट फार्मूला। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखें कि लॉस क्या हुआ है। तो 100 में से 85 की जब पीक बनी है तो लॉस ऑफ 15 जो कि CH3 के बराबर है, और 100 से आपके पास जो 71 की पीक बनी है दैट इज 29 मैस यूनिट लॉस। 29 पे अगर आप रूल ऑफ 13 अप्लाई करें तो या तो C2H5 आता है या फिर एक ऑक्सीजन के साथ HCO आता है। तो आप दोनों सिचुएशन में हमें अब शार्ट आउट हो गया कि हमारा एक फ्रैगमेंट या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर ये फ्रैगमेंट लगाते हैं तो ये एल्डिहाइड की फॉर्म में आ सकता है, अगर ये फ्रैगमेंट लगाते हैं तो दैट कुड बी एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का फार्मूला इसमें जस्टिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड बनाएंगे इट विल नॉट सेटिस्फाई ऑल अदर पीक्स। ओके, अब हमने क्या किया कि जो 71 की पीक है, दिस पीक जिसमें 29 का लॉस हुआ है, या तो ये फ्रैगमेंट या ये फ्रैगमेंट, तो हम देख लें वो 71 क्या है। तो 71 जो है वो हमारे पास आता है C4H7O। 71 से हमें एक चीज यहाँ पे देख लें कि 72 की पीक भी दी हुई है। अगर आप 72 जो है, अगर आप 71 को कह देते हैं फ्रैगमेंट पीक, तो 72 जो है वो फ्रैगमेंट +1 पीक है, जो कि आइसोटोपिक पीक हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो दिस इज लाइक ए आइसोटोपिक पीक। तो आप 72 का जो इंटेंसिटी है 2.1 डिवाइड कर दें 46.6 से, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो दैट विल गिव यू क्लोज टू 4.5%। 4.5% का मतलब यह है कि दिस फ्रैगमेंट शुड हैव एट लीस्ट 4 कार्बन, और वो 4 कार्बन हमने यहाँ पे लगा ली। और जो अगर आप इसका रूल ऑफ 13 लगाएं तो ये 5 कार्बन के बराबर आपको इंडिकेशन दे रहा है। तो 5 कार्बन की आपके पास रेशो नहीं है, तो आपने इसका मतलब एक ऑक्सीजन इसके अंदर डाल दी। अगर फ्रैगमेंट में ऑक्सीजन डाल दी है तो यहाँ जो लॉस हुआ है यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज वी हैव ओनली 1 ऑक्सीजन इन द मॉलिक्यूल। सो आपके पास ये फ्रैगमेंट बनता है जिसमें CH2 CH3 प्लस दिस फ्रैगमेंट। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो आप कह सकते हैं कि CH2 CH3 और इसके बाद C4H7O। अब इतना पार्ट आपने सॉल्व कर लिया इस फ्रैगमेंट का। अब आप दूसरी पीक पे चले जाएं, 20 जो बड़ी पीक है 43 वाली। 43 की पीक जो है वो इंडिकेट कर रही है कि आपका जो ये फ्रैगमेंट जो 71 वाला है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट होके जो 73 की पीक उसमें से निकली है। तो दैट मीन वी हैव दीज फ्रैगमेंट C3H7। उसके बाद ये जो लॉस हुआ था इस फ्रैगमेंट में, जो 71 का जो फ्रैगमेंट है दैट इज जस्टिफाइड बाय दिस यूनिट।
and now we have two carbons in one side, carbonyl, and 3 carbon in other side. So we can come up with only two possibilities. या तो आपका carbonyl के साइड पे आपके पास 2 कार्बन है और दूसरी साइड पे 3 कार्बन इन लीनियर फॉर्म में है, या फिर 3 कार्बन जो है ये इसमें ब्रांच्ड फॉर्म में है। तो हम इसमें इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ वी डोंट हैव द मैक्लेफर्टी फ्रैगमेंट। क्योंकि अगर ये फ्रैगमेंट होता तो हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन मौजूद है, तो यहाँ हाइड्रोजन से मैक्लेफर्टी फ्रैगमेंट बनना चाहिए था। If you don't see McLafferty fragment here, that means this fragment is not, this structure is not justified, only this structure is justified. Okay, तो यहाँ हम स्टॉप करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर डन विद द लेक्चर।